Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Today we are going to start mechanical vibrations. This is very important subject. What we understand in mechanical vibration, different terms are there. Okay, first of all, we have to get aware of all these terms. Then, after, what are the different types of degree of freedom? Okay, then after, what is phase angle? If the and undamped free vibrations here, the main topics start from here. Undamped free vibration of single degree of freedom. Okay, means only the displacement in x direction taking place. That's why a single degree of. Then after we make a equation and finally we try to calculate the omega n, which is the natural angular frequency, radian per second. Okay, accordingly, we can find out the Fn also, okay, linear frequency. Then after in case of the simple pendulum, okay, if the pendulum of mass m is reciprocating, okay, doing some theta angle, taken theta angle with small x value, which is nothing but amplitude. Okay, what is the equations using the d Alberts you can get? Okay, same thing. There are many multiple examples. Okay, one can calculate the omega n, okay, using the energy methods or by using the force balance method, which is also known as d Alberts. Okay, then after for the wheel case, okay, one has to find out the what is the oscillations occurring at point O. Okay, here G is the gravitational point. Then after in torsional vibrations, what is omega n? Okay, Kt upon J. Kt is the torsional stiffness of the shaft and J is the mass moment of inertia of this rotor, given as mr square upon 2. We will see one by one. Okay. Then after for the case of series and parallel, what is the equivalent stiffness? Okay, for the case of spring, for the case of the series and for the case of parallel. Okay, so since this chapter is very much long, so I have divided my lecture into 3 to 4 parts. Okay, so one by one I am going to deliver a lecture. Okay, so let's start with previous year questions. Okay, so Gate 1. Consider the system of two wagons shown in the figure. The natural frequency of this system are. See, wheel, we are having a wheel now here, and above that we are having a mass m. Bogie है, bogie का mass m दे रखा है. Okay, in between that we are having a spring of stiffness k. See, two options are given here. In each every options you are having a two different options. Okay, see here. First, this is our path of movement of the wagon. Okay, ये है, ठीक है, उसमें क्या है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक, स्टिफनेस के है, एम मास है, एम मास है. ठीक, पहला केस, ठीक है, पहला आंसर फाइंड आउट करते हैं. पहला केस क्या है, मानते हैं कि ये इधर हम लोग डिस्प्लेस फोर्स से एक्स डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हमें खींच रहे हैं इस वैगन को, राइट साइड में वैगन इज मूविंग. ओके, सो ध्यान से देखो, जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, व्हाट इज ओमेगा एन, एक्चुअली ओमेगा एन ही फाइंड आउट करने के लिए. ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम. ओके, रूट के अपॉन एम. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है. के को क्या करते हैं, स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन. ओके, यही तो होता है. तो क्या हम लोग के को यहाँ पर पी अपॉन डेल इंटू एम लिख सकते हैं, ठीक है.
पी क्या है, न्यूटन में है। यूनिट क्या होता है के का, न्यूटन पर मीटर, वही तो है। ऊपर में न्यूटन, नीचे में डिफ्लेक्शन। ओके, सो न्यूटन को कैन आई राइट लाइक दिस mg, p equal to mg del into m. So m gone, so finally g upon del you are. So omega n is equal to root g upon del. See, अब इक्वेशन को क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जब x डायरेक्शन में हम लोगों का एक डायरेक्शन व्हील वैगन को, ठीक है, हम लोग खींच रहे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, ये भी तो x डायरेक्शन से ही जा रहा है। इस वाले को x डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। ये वाला दूसरा वाला वैगन भी तो राइट डायरेक्शन में x डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि मास और मास बोथ सेम है। जितना फोर्स इसमें लगाएंगे इधर खींचने के लिए, ओके, जितना फोर्स हम लोग इधर लगाएंगे, ठीक है, खींचने के लिए, इधर लगा रहे हैं फोर्स खींचने के लिए, इतना ही एफ फोर्स भी तो इसमें लगाना ही पड़ेगा ना, एम में, क्योंकि एम आर कांस्टेंट। So there is no deflections happening when a single x displacement we are moving in the right side. Okay, so one is zero. ठीक है, एक तो जीरो हो गया, तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा। दूसरे का देखते हैं, ठीक है, दूसरे का। अब दूसरा वाला केस क्या है, दूसरा केस क्या हो सकता है, एक केस तो हम लोग राइट साइड में मूव करा, ठीक है, एक केस तो हम लोग क्या किए, एक केस तो हम लोग राइट साइड में एक्स को मूव करा दिए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम लोग दोनों को ऐसे कंप्रेस करें, ठीक है। अब तो ये स्प्रिंग का क्या हाल होगा, हाफ स्प्रिंग, यदि ये वन साइड है और ये टू साइड है, ठीक है, तो डेल वन इक्वल टू डेल टू होगा क्या, क्यों? आधा स्प्रिंग लेफ्ट साइड का हाफ स्प्रिंग मींस विच साइड का हाफ स्प्रिंग, इधर का हाफ स्प्रिंग और इधर का हाफ स्प्रिंग, दोनों आधा आधा कंप्रेस होगा। ओके, क्लियर ना? तो हम लोग सीरीज और पैरेलल का केस में क्या देखे हैं, जब भी हम लोगों का इस तरीके से, ये हो गया हम लोगों का सीरीज का केस, दिस इज आवर एम and K1 stiffness spring 1, K2 spring stiffness or spring 2 series. Okay, and another case will be parallel, है ना, ये हो गया M, ठीक है, ये K1 हो गया, K2 हो गया, दिस इज आवर पैरेलल केस, है ना। तो दोनों का हम लोगों का देखते हैं। हम लोग ये भी पता है K इज इक्वल टू P अपॉन डेल, मालूम है ना। इस केस में, पैरेलल के केस में क्या होगा, जो P होगा, या यू कहें डेल वन इक्वल टू डेल टू होगा क्या, जब नीचे इसको हम लोग ऐसे x डायरेक्शन में खींच रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m को नीचे की ओर आ रहा है, तो जितना इस, क्योंकि ये पैरेलल है ना, इसको ऐसे नहीं टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है, मास को, ब्लॉक को टेढ़ा नहीं करना, मतलब ऐसे ब्लॉक नहीं कर देना है, m mass as a, this is not permitted. Okay, what is permitted here is you are moving this parallel m block parallel downward direction, तो डेल वन, इसमें भी डेल वन डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें भी डेल टू डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दोनों का दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में, ये दोनों पैरेलली क्या हो रहा है,
ये यहाँ था, तो थोड़ी देर में बाद ये नीचे ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डेल वन इक्वल टू डेल टू डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये तो और बचा क्या, वेरिएबल के कांस्टेंट है ना, के इज कांस्टेंट, सो ओनली वेरिएबल्स आर पी एंड डेल। तो यहाँ पर डेल वन इक्वल टू डेल टू, तो बचा क्या, पी। पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू होगा, है ना, पी वन पी टू। अब इस सीरीज वाला जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, है ना। यहाँ डेल वन डेल टू बराबर था, इज इक्वल टू डेल कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी, है ना। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पैरेलल, पैरेलल में ये डेल वन डेल टू बराबर क्यों होगा, बिकॉज के मास जितना के वन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, ओके, या इलोंगेट कर रहा है, उतना ही टू वाले स्प्रिंग को भी वो इलोंगेट कर रहा है, इसीलिए ये आ गया। अब यहाँ पर देखो P को क्या लिख सकते हैं, K इंटू डेल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, P को K इंटू डेल इज इक्वल टू पी वन को क्या, के वन डेल वन प्लस के टू डेल टू लिख सकते हैं। क्योंकि डेल वन डेल टू डेल बराबर है, तो डेल डेल वन डेल बराबर, खत्म। क्या आ गया, के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, ओके, ये आ गया मेरे को। ये क्या है, के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, ठीक है। अब सेम काम वी विल बी डूइंग हियर आल्सो, यहाँ पर भी काम करेंगे। देखो अब ये वाला यूज करेंगे, डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, यहाँ डेल को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला काम करेंगे, तो डेल इक्वल टू पी अपॉन के इक्वल टू पी वन अपॉन के वन लिख सकते हैं, डेल वन को पी वन अपॉन के वन यहाँ से, प्लस पी टू अपॉन के टू लिख सकते हैं ना, ओके। नाउ यहाँ पर क्या है, पी वन पी टू पी ऑल बराबर, तो कैंसिल आउट, तो वन बाई के इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, so this is another formula for the series case. This is again our K equivalent of spring, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ये वाला क्या मैं बोला, डेल वन और डेल टू दोनों क्या होगा, आधा स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस होगा, ठीक है, आधा वाला राइट साइड वाला भी कंप्रेस होगा, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में होगा। तो बराबर बराबर डिफ्लेक्शन किस में आ रहा था, पैरेलल की सीरीज में, यस इन केस ऑफ पैरेलल deflection same, so we will be using this formula, k is equal to k1 plus k2, so k is equal to k1 plus k2, ठीक है। this हम लोग this we will be using here, ठीक है, k equivalent, ठीक है। तो k equivalent इक्वल टू k1 क्या है, 22 के होगा, 22 के होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि डेल वन इक्वल टू डेल टू है ना, तो k इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, ठीक है, 2k। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के अपॉन के इक्विवेलेंट अपॉन एम, ओके। तो फाइनली के इक्विवेलेंट इज हाउ मच, 2k अपॉन एम, ओके। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो k1 प्लस k2, तो k1 इज व्हाट, k1 इज आवर दिस, ठीक है, मतलब ये हाफ पोर्शन, ठीक है, यानी कि k प्लस के, ठीक है, ऐसे लिख सकते, k1 क्या है,
क्योंकि स्टिफनेस इज व्हाट, स्टिफनेस इज कांस्टेंट, stiffness is always constant, and K is the stiffness of spring, which is always constant। ठीक है, चाहे उसको कितना भी टुकड़ा कर लो, वो स्टिफनेस स्प्रिंग के का के ही रहेगा। इसका 4-10 टुकड़ा भी करोगे तो एक छोटा सा जो 1 पार्ट निकल रहा है आउट ऑफ 100, okay, so that spring also will have is the same K value, okay, so K plus K equal to, so finally second option will be 2K upon M under root, okay, so A is our correct answer, okay. Now next question, as shown in the figure, a mass of 100 kg is held between two springs. The natural frequency of vibration of the system in cycles per second is, ओके, साइकिल पर सेकंड में पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो स्प्रिंग दे रखा है, दिस इज आवर स्प्रिंग नंबर 1 एंड दिस इज आवर स्प्रिंग नंबर 2। जब ये नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज आवर, ये एक स्प्रिंग है, नाउ वी आर हैविंग अ मास m हियर, ओके, this is another spring and fixed here, ठीक, this is our 20 kilonewton per meter and this is again 20 kilonewton per meter, m given is 100 kg, okay। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ x मूव करा रहा हूँ, मतलब कि डिस्टर्ब कर रहा हूँ सिस्टम ताकि वाइब्रेशन हो। अब देखो ये स्प्रिंग नंबर 1 एंड दिस इज आवर स्प्रिंग नंबर 2, यहाँ पर जितना 2 कंप्रेस हो रहा है और 1 स्ट्रेच हो रहा है, तो यानी कि डेल 1 पॉजिटिव होगा, डेल 2 निगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, ठीक, या यूं कहें मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ना, है ना। डेल 1 जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेल 2 उतने डिफ्लेक्शन हो, हम लोग वेक्टर की बात नहीं करते, हम लोग सीधे मैग्नीट्यूड। ओके, सो वी नो दैट k इज इक्वल टू p अपॉन डेल, ओके, क्योंकि पैरेलल, ये किसके केस में, पैरेलल का केस हो गया ना, है ना। k इज इक्वल टू p अपॉन डेल, so what can you write here, पैरेलल के for parallel case what is k equivalent equal to k1 plus k2, already we derived in the first question. Here in the parallel case, k is equal to or k equivalent equal to k1 plus k2, okay, same thing I have used here. So k1 is how much, 20, k2 is again 20, so 20 plus 20 you are getting 40 kilonewton per meter. Now omega, no, we know that omega n is equal to root k upon m, k equivalent upon m, okay, so k equivalent how much we obtained, 40 into 10 power 3, ये किलो न्यूटन, तो we have converted to Newton. M is how much, 100, so 100, okay, so finally how much getting, 400 का रूट 20 रेडियन पर सेकेंड, बट वी हैव टू कैलकुलेट इन साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, बट टाइम बराबर क्या होता है, टाइम है ना, टाइम बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा एन, और यू कहें, और ओमेगा एन यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो 2 पाई रेडियन हो गया पर सेकेंड, यूनिट क्या होता है रेडियन का, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऊपर में 2 पाई हो गया 360 डिग्री और नीचे में सेकेंड टाइम हो गया, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे यू रिमेम्बर दिस। सो टाइम इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा एन। ओके, तो फाइनली हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि साइकिल पर सेकेंड का यानी हर्ट्ज में निकालना है। ओके, तो 1/t=f n फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/t ओमेगा n अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो एफ नेचुरल, एफ एन मीन्स नेचुरल, ओमेगा एन नेचुरल। ओमेगा एन कितना निकाला मैं, 20, 2020। ठीक है, अपॉन ये रेडियन पर सेकेंड में आया था, यूनिट भी लिख दिया, 2 पाई। 2 पाई क्या है, रेडियन है, तो रेडियन से रेडियन कैंसिल। ठीक है, क्या आया, 10/पाई साइकिल पर सेकेंड, नीचे में सेकेंड आएगा। ओके, सो दिस इज आवर एफ एन वैल्यू, 10/पाई, 10/पाई। So this is our correct answer. Okay. Now moving to our next question. A mass m 20 kg, ठीक है, मेरे पास एक कैंटिलीवर टाइप का है ना, कैंटिलीवर टाइप का बीम है। ठीक है, एम, इसका क्या है, हाँ, a mass of 20 kg, m is equal to 20 kg, is attached to the free end of a steel cantilever beam of length 1000 mm. This length given is 1000 mm to see center of gravity यहाँ था। Having cross section area, मतलब इसका cross section area कितना कैसा दे रखा है, like this। ठीक है, this is our what, this is our cross section area। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काटोगे तो ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे ये लेंथ हो गया होगा। दिस इज गिवन इज 1000 mm स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पड़े। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन इज 25 × 25 मीन्स ये 25 दे रखा है और दिस 25 दे रखा है इन mm है ना। एज्यूम द मास ऑफ द कैंटिलीवर टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, ई स्टील गिवन इज, ई स्टील 200 GPa gigapascal if the lateral vibration of this system is critically damped। lateral means longitudinal एक होता है, एक lateral होता है। जब हम लोगों का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लेंथ हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल। यदि हम लोगों का अलोंग दिस डायरेक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे, ठीक है, मतलब कि ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर लैटरल। ओके, लैटरल मीन्स परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। lateral vibration system is critically damped, means zeta is equal to 1, c equal to cc। using the viscous damper, the damping coefficient constant of the damper is, यानी c का वैल्यू या cc का वैल्यू पूछा है, दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि क्रिटिकली डैम्प्ड बोल रहा है। ओके, यानी जीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो जीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन सी होता है, ये तो जीटा होता है, वो 1 दे रखा है ना। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड में, तो कैसे करते हैं, देखो, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट ए अपॉन एम, वी नो दिस यूनिवर्सल फॉर्मूला। ठीक, ए इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन डेल, वी नो दिस, there is no doubt। okay, so can I put k here,
इन ए पी अपॉन डेल इंटू अपॉन एम, ए को पी अपॉन डेल आई हैव रिटन हियर। ओके, सो नाउ फर्दर फर्दर ए का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन को हम लोग P इज इन न्यूटन, सो आई हैव रिटेन दिस इन mg। mg क्या है, न्यूटन ही तो है। डेल को डेल रहने दो, m को m रहने दो, m को कैंसिल, so this is finally getting is g upon del। okay, so omega n is equal to g upon del। now ओमेगा n निकालने के लिए g तो नो डाउट नो प्रॉब्लम g इज 9.81 ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेल कैसे निकलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखोगे, ठीक है, हियर डेल इज इक्वल टू कैंटिलीवर व्यू में ना pl क्यूब अपॉन 3i होता है क्या, 3ei, ठीक है, कोई कैंटिलीवर बीम है हम लोगों का, है ना, p है, और ये l हो गया हम लोगों का लेंथ हो गया, ठीक है, e इस वाले, ठीक है, बीम का हम लोगों का e का वैल्यू, आई इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, जहां से बी डी क्यूब अपॉन 12 से निकल, ठीक है। नाउ हम लोग इधर मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक, हाँ, यहाँ से डेल इज इक्वल टू पी एल क्यूब अपॉन 3ei। व्हाट इज p here, p is what, p is our force, how much force, 20 into g, g is how much, 9.81, ठीक है, न्यूटन में आ गया। एल, लेंथ ऑफ द बीम इज 1000 इन मीटर में 1 मीटर, ठीक है। 3, ई कितना है, ई हाउ मच गिवन, 200, 200, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में आप कन्वर्टेड 10⁹। मेगा रहता 10⁶, किलो रहता, किलो रहता 10⁻3, मेगा रहता 10⁶, गीगा है 10⁹। ओके, तो आई हैव रिटन 10⁹। ओके, तो ये आ गया हम लोगों के पास आई, आई बराबर क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12, यानी स्क्वायर सेक्शन है ना, ए टू द पावर 4 अपॉन 12, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर ए। ओके, तो व्हाट विल बी द आई वैल्यू, ठीक है, अबाउट कोई भी एक्सिस में, तो आई एक्सिस इज इक्वल टू ए टू पावर 4 अपॉन 12 या बी डी क्यूब अपॉन 12, बी और ए इज बोथ सेम, सो फाइनली यू विल बी गेटिंग ए टू पावर 4 अपॉन 12। ओके, सो ए कितना है, ए इज 25 mm, तो 25 इंटू 10⁻³ वाई मीटर में, e टू द पावर 4 अपॉन 12, ये ऊपर में चला गया 12, ठीक है, तो फाइनली डेल यू आर गेटिंग इज कैलकुलेशन। हम्म 3 इंटू 200 इंटू 10⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻³ ओके, टू दी पावर 4 ना, टू दी पावर 4, ठीक है, ये आया इतना वैल्यू, इसका इन्वर्स करके, इन्वर्स इंटू 20 इंटू 9.81 इंटू 1 का क्यूब इंटू 12, ठीक है, तो फाइनली 0.0100, 0.0100 मीटर, 005 ले लो, ठीक है।
मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस वाले फॉर्मूला से ओमेगा एन निकालना है। तो देन दिस इज आवर इक्वेशन 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो from one equation, omega n is equal to root g upon del. So g is how much? 9.81. Del is 0.01005. Calculate, you will be getting, ठीक, इसका इनवर्स into 9.81, then after root of answer is 31.25. 31.25 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओके। तो फाइनली आंसर, ओके, सीसी बोला है निकालने के लिए। नाउ सीसी अपॉन 2m इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, और सीसी अपॉन 2m इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम लिख सकते हैं। ओके, रूट के अपॉन एम को ही तो ओमेगा एन बोलते हैं। ओके, तो सीसी को क्या लिख सकते हैं? 2m इंटू ओमेगा एन। सीसी को यही तो निकालना है मेरे को, सीसी 2 इंटू एम। एम हाउ मच गिवन? 20। तो 20 ओमेगा एन हाउ मच यू कैलकुलेटेड? 31.25। तो फाइनली ओके, फाइनली कैलकुलेट वैल्यू। तो 31.25 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 20, तो 1250, 1250, 1250। ओके, न्यूटन सेकेंड पर सीसी अपॉन 2m। सीसी का यूनिट क्या है? अपॉन 2m। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का, और इंटू 2 इंटू एम। ठीक है, एम के जी। ठीक है, तो इसका न्यूटन सेकेंड, इसका नाउ आंसर कमिंग इज 1250। मैचिंग और नॉट? यस, 1250। ठीक है, न्यूटन सेकेंड मीटर। तो आंसर इज दिस, न्यूटन सेकेंड मीटर। तो इसका यूनिट जो आएगा न्यूटन सेकेंड मीटर में आएगा। दिस इज आवर सी सी। सो इन दिस वे you have to calculate. So this formula you have to memorize. Okay, this is a standard formula. Okay, this is the standard formula. This standard formula, and this is also a standard formula. Okay, PL cube upon 3i. Okay, so in this way you have to solve the question and calculate the damping constant CC value. Okay, now question number 4. A rod of uniform diameter, a rod of uniform diameter is suspended from one of its end in vertical plane. Okay, question का diagram I am drawing. So this is our fixed
suspended from one of its end in vertical plane. So this is our suppose rod. Okay, rod. The mass of the rod is m and length l. This is the length l given. l mass कितना दे रखा है, m mass. The natural frequency of this rod in hertz for small amplitude is engineering service question exam 2022. Okay. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसको थोड़ा सा हमें क्या करना था, डिस्टर्ब करना होता, डिस्टर्ब मतलब कि सिस्टम को थोड़ा सा छेड़ना होता है कुछ एंगल से। ये कैसे डिस्टर्ब होगा, कैसे मूवमेंट होगा थोड़ा सा एंगल देंगे तो। ठीक है, पहले हमें बॉडी हमें ऐसे था, ठीक, पहले बॉडी मेरा ऐसे था स्ट्रेट, अब क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रेविटी, ये थोड़ा सा क्या हुआ एंगल पे ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, मिडिल से मिडिल, ठीक है, ये मिडिल है और ये मिडिल, थीटा एंगल। और सिंपल सिंपल लाइन में यदि ड्रॉ करते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक, यदि मेरे पास ये एक है ना, ये हो गया। अब ये एल लेंथ का जो मास है, ठीक है, रेक्टेंगल ना ड्रॉ करके सिंपल आई हैव ड्रॉन ए वन स्ट्रेट लाइन। अब ये ऐसे पोजीशन पे आ गया, ठीक, ये ऐसे, तो ये एंगल कितना बनाया, थीटा एंगल, ठीक, ये। तो इसका हम लोग कैसे कैसे करते हैं, सपोज दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट ओ। ओके, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन क्या निकालते हैं, जे नॉट इंटू थीटा डॉट, हम लोग कैसे एक इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, the same thing I will be using instead of m, since it is a not linear case ना, rotational case के लिए j नॉट आ गया, थीटा डबल डॉट के एक्स डॉट के जगह प्लस के इंटू एक्स के जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ग्रेविटी काम करेगी ना, क्योंकि मास है ना रॉड का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही तो एम मास लटकेगा नीचे, ऐसे एम जी यहाँ पर, ठीक है, तो एम जी इंटू मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट अबाउट ओ आई विल टेक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, एल बाई टू ना, हाफ पर ही तो एम जी लगेगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दिस जी, ठीक है। ये वाला ये वाला जो है लेंथ कितना हो गया, दिस वाला लेंथ इज हाउ मच, दिस वाला लेंथ, इसको, हाँ, तो ऐसे करो, ये वाला एक्स लेंथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एस मतलब कि ये हो गया एक्स, एस अपॉन आर, आर रेडियस ये हो गया ना एल बाई टू, एल बाई टू, है ना। कैसे लिखते हैं हम लोग यदि मेरे पास ये वाला रहता है ना, ये थीटा होता है और ये एस हो गया, है ना, एस हो गया, और दिस इज आवर रेडियस आर, सेम फॉर्मूला वी राइट हियर, theta is equal to s upon r. Okay, the same thing I have written here. X is not curve but for small, very very small value of x, लगभग s स्ट्रेट लाइन होगा, s स्ट्रेट लाइन होगा x, इसीलिए बुक में एज्यूम किया हुआ रहता है कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ amplitude, x is what, amplitude, so very small value of amplitude x value, okay, nearly x will be straight line, okay, even though it should be the curved line, but we have assumed that it is following for a very small magnitude of amplitude, x is small,
ओके, तो फोर्स इंटू क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट ओ, तो एम जी इंटू दिस डिस्टेंस। ओके, फोर डिस्टेंस कितना है, इंटू एक्स इक्वल टू 0, और जे नॉट थीटा डबल डॉट प्लस एम जी, एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो एल बाई टू इंटू थीटा इक्वल टू 0। ओके, लाइक दिस वी कैन, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, के क्या होता है, यहाँ ओमेगा एन क्या होता था, रूट के अपॉन एम, द सेम थिंग आई विल बी यूजिंग हियर। के क्या होता था, ये पूरे को तो के बोलते थे ना, पूरे को, ठीक है, थीटा के आगे वाला को के, एम जी एल अपॉन टू अपॉन एम, एम ये वाला को बोलते थे एक्स डबल डॉट के आगे या थीटा डॉट के आगे जे नॉट। ओके, but still we have to calculate answer in some other form, in this way you have to calculate। okay, so j naught ko you will have to remove। okay, you will have to remove the j naught, तो j naught कैसे रिमूव होगा, हाँ, ये वाला यहाँ से, see here, so this j naught is what, mass moment of inertia, see, mass moment of inertia, mass, ये यूज शॉर्ट फॉर्म में, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई डिफरेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बता देता हूँ। यदि मेरे पास कुछ इस तरीके का पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड है, तो इसका क्या होगा, जे नॉट, जे नॉट क्या होगा, जे इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर, एल क्या है, लेंथ, कहाँ से कहाँ तक, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, और दिस इज ऑफ द मास, ठीक है, बॉब हो गया, बॉल हो गया, या बॉब हो गया। ओके, तो यदि मैं ऐसा केस हो गया तो जे इक्वल टू क्या निकालते हैं, एम एल स्क्वायर, ठीक है, और भी केसेस हम लोग देखते हैं, है ना, ये एक केस है। दूसरा केस, यदि मेरे पास कुछ इस तरीके का सॉलिड डिस्क है जो कि आर रेडियस का है, मास एम हो गया, क्या है, सॉलिड डिस्क, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन टू होगा, ठीक है, 3। यदि मेरे पास इस तरीके का रॉड है ना, यदि ये सेंटर के अबाउट में इस तरीके से रोटेट कर, ठीक है, दिस इज आवर एल लेंथ गिवन, एल लेंथ गिवन, मास ऑफ द रॉड इज एम, तो आई जे सेंटर, जे नॉट हो गया इसके, जे नॉट हो गया इसके, ठीक है, ओ, जे सेंटर हो गया यानी सेंटर लाइन हो गया, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, देखो सभी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर है, सभी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर है, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक। फोर्थ का देखते हैं, यदि यही रॉड, यदि यही रॉड हम लोग का एंड से रोटेट करता हूँ, ठीक है, सेम थिंग गिवन, एल लेंथ, एम मास, के, तो जे एंड, जे ई एन डी एंड, है ना, एंड पोजीशन, एंड से रोटेट कर रहे हैं ना, लाइक दिस इज आवर रॉड एंड दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस इज आवर एक्सिस, एंड एक्सिस, ओके, और सेंटर के लिए क्या था, ये इस तरीके से, ठीक है, सेंटर से ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, सो जे एंड इज इक्वल टू सेम एम एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ 12 ना होके 3 होगा, ठीक है, तो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। यदि मेरे पास स्पेयर हो गया, ठीक है, स्पेयर बॉल है, ठीक है, दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर
एक्सिस, दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जे क्या होगा, 2/5 mr², आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस, ठीक है। 6, यदि यही मेरे पास हाफ स्पेयर होता है, हाफ स्पेयर या हेमिस्फेरिकल, तो J इज इक्वल टू 2/3 mr², ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और कुछ बचा है, ठीक है, तो इतने से काम बन जाएगा। हाँ, रिंग यदि होता है मेरे पास, रिंग बोले तो मानी ऐसे, रिंग, थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, थिकनेस, रिंग जो हम लोग उंगली में पहनते हैं, ठीक है, रिंग, थिकनेस, थिकनेस नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम ये पॉइंट लोड की तरह काम करेगा, ठीक है। यदि रेडियस r है, मास m है, ठीक है, तो पॉइंट लोड की तरह कैसे काम करेगा, जो फॉर्मूला था वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, mr² होगा, ये इसके अबाउट में रोटेट कर रहा था, ठीक है, ये इस तरीके से। नाउ हमें जे नॉट चाहिए, जे नॉट क्या है, जे नॉट क्या है, एक चीज और ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर, हिट, यदि मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, यदि मेरे पास कोई बॉडी है, सपोज दिस इज आवर ओ, है ना, ओ से चिपका हुआ है, तो टंगा हुआ है जी, दिस इज आवर लेंथ एल, okay, this is our length L, say this is our compound pendulum, compound pendulum, okay. So if you have to calculate J, that moment of inertia about O, ठीक है, O से यहाँ पर, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, जे जी प्लस यहाँ से यहाँ आने में O से और G का डिस्टेंस mr² होता है ना, L का स्क्वायर, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू हैव टू इन माइंड, okay. G is the center of gravity here, okay. So coming back to our question here, J नॉट हमें निकालना है, ठीक है, J नॉट निकालना है, तो ये किस टाइप का रॉड है, किस टाइप का रॉड है हम लोगों का, ये जो रॉड है क्वेश्चन में किस टाइप का रॉड है, एक स्ट्रेट रॉड है जो हम लोगों को एंड में लग रहा है, ठीक है, एंड में लग रहा है यहाँ पर, तो J नॉट कैसे निकलेगा, J नॉट कैसे निकलेगा, यही तो होगा, ये वाला तो होगा ml²/3, एंड से रोटेट हो रहा है ना, ये वाला द सेम थिंग कंसेप्ट, यदि सेम चीज यहाँ पर निकालना चाहोगे तो भी निकलेगा, सेम आंसर विल बी, so this direct formula I will be using, okay. So finally mgl/2, J नॉट को क्या लिखेंगे, ये तो एंड में है ना, एंड से ही तो अटैच है ये रॉड, okay. तो दिस इज टोटल एल लेंथ, तो ml²/3, टोटल लेंथ एल है ना, ml²/3 फाइनली यू आर गेटिंग, m से m कैंसिल, l से ये वाला कैंसिल, 3g/2l, 3g/2l, तो आंसर किस में पूछा है, हर्ट्ज में पूछा है, ठीक है, तो हर्ट्ज में ना, हर्ट्ज में ओमेगा एन में नहीं पूछा, तो हमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू
टाइम इक्वल टू या ओमेगा ओमेगा एन इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड ना, तो ऊपर में डिग्री कर दो, रेडियन पर सेकेंड टाइम को, और 2 पाई 1/t को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना, हमें तो एफ एन ही निकालना है ना, तो 1/2 पाई टू ओमेगा एन, ओमेगा क्या आ गया, 1/2 पाई इंटू ओमेगा एन, द सेम थिंग आई विल पुटिंग हियर, ठीक है। तो 3g/2 into L, so this is our final answer, 3g/2, 3g/2L, 3g/2L, so answer coming is our D, ठीक है। So by this way you have to keep these things in mind, okay, this different cases, इजिली याद करने के लिए देखो, एम आर स्क्वायर सिंपल, इसमें एम एल स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 2 या एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये सेंटर के लिए है, यहाँ पर भी सेंटर के लिए, तो इवन नंबर याद रखो, ठीक है, 2 2, ये एंड है, ऑड कर दो, जस्ट डिवाइडेड बाई 4 3 आ जाएगा, बाकी के लिए थोड़ा मेमोरी में डालना हो, ओके। हाँ, ये मैं बोल रहा था एम एल स्क्वायर अपॉन 3 कैसे आया, देखो बीचों बीच जा रहा तो जे जी हो गया, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही हो गया ना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 कर सकते हैं क्या, यदि मैं ये वाला केस लूं, है ना, यदि मैं प्रूव करना चाहूँ, यदि एल ये है, एम है, हमें जे नॉट पे निकालना, दिस इज आवर नॉट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, तो मैं क्या फॉर्मूला बताया था, जे जी प्लस एम, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ओ जी स्क्वायर, ओके, द सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर, ओके। फिर जे नॉट का देखते हैं, यानी एंड का टर्म, एंड का है ना, दिस इज और नथिंग बट द जे एंड, है ना, दिस वन जे एंड, तो ये प्रूव करके देखते हैं एम एल स्क्वायर अपॉन आ रहा है कि नहीं, तो जे जी क्या है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जी, मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो सेम फॉर्मूला है, पुट हियर, ये क्या आ गया, एम को एम रहने दो, ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना है, हाफ हो जाएगा ना, दिस L/2 का होल स्क्वायर, तो फाइनली एम एल स्क्वायर को बाहर लो, अंदर में 1/12 होगा प्लस 1/4, तो 3 4 एम एल स्क्वायर इंटू 4/12 आ गया, 4 3 12, कितना आया, तो दिस इज जे नॉट और जे एंड इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, आ गया क्या होकर, okay, so in this way you have to calculate and find out the natural frequency of the rod, okay. Now next question, which one of the following is the correct value of the natural frequency omega n of the system given below, okay, देखो ये दोनों k1 और k2 क्या है, ओमेगा n निकालना है ना, रूट k अपॉन n, ओमेगा n इज इक्वल टू रूट k अपॉन m, ठीक है, तो मीन्स के इक्विवेलेंट अपॉन एम, एम तो है ही है, नीचे में एम 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 सभी में है, ठीक है, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट के इक्विवेलेंट, ठीक। अब देखो k1 और k2 किस में है, पैरेलल में, ठीक है, यानी कि इसको स्ट्रेच ऐसे करेंगे, तो यहाँ del1 जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, del2 डिफ्लेक्शन आ रहा है, बोथ del1 एंड del2 विल बी सेम, इट मीन्स दैट बोथ आर पैरेलल, ओके, सेम डिफ्लेक्शन पैरेलल, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ k1 एंड k2 आर व्हाट, पैरेलल, पैरेलल का केस के लिए हम लोग क्या देखे थे, k1 और k2 को ऐड कर दो, है ना, तो k डैश करता हूं, ठीक है, k डैश पहला, तो k1 प्लस k2 दोनों पैरेलल में है, ठीक है। एक और हम लोग निकालेंगे, यह किस में आ गया,
ये डैश आ गया, फिर ये किस में है, ये 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ हम लोगों का ये मास है, लाइक दिस, एंड दिस इज with x मूविंग इन द राइट, ये फिक्स्ड है। अब k डैश और k3 किस में है, सीरीज में है। k1 और k3 किस में, सीरीज में। तो सीरीज के लिए 1/k 1/k1 प्लस 1/k2 करते थे, ठीक है। द सेम थिंग आई विल बी यूजिंग हियर, 1/k डबल डैश, ये नया k इक्विवेलेंट आएगा ना, है ना। एक तो है ये k डैश, है ना, प्लस 1/k3, है ना। सेम फॉर्मूला आई हैव यूज्ड हियर, k डबल डैश मींस इन दोनों का इक्विवेलेंट अब आएगा, ठीक है। 1/k1 k डैश को वैल्यू पुट कर देते हैं, k1 प्लस k2 प्लस 1/k3, ठीक है। आंसर थोड़ा इस फॉर्म में दे रखा है, तो उसी फॉर्म में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। k डैश क्या आ गया, इसको इधर ले जाओ, k डैश को इधर ले जाओ, और ये पूरा टर्म जो आएगा, ये पूरा का टर्म जो हो गया 1 के नीचे में आएगा, ठीक है। यानी कि 1 के नीचे में आएगा, 1 के नीचे में कर दो, k1 प्लस k2 प्लस 1/k3, है ना, लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल इक्विवेलेंट, इसी यही तो है हम लोगों का के इक्विवेलेंट, जो कि हमें किस में बैठाना है, किस में बैठाना है, ओमेगा एन में निकाल बैठाना है, ठीक है, इसमें। सो पुट 2 in 1 ओमेगा एन इक्वल टू रूट के इक्विवेलेंट अपॉन एम, ठीक है। पुट करते हैं हम लोग, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट क्या आ रहा है, 1/k1 प्लस, यही है ना, के डैश को डायरेक्ट कर देते हैं, के इक्विवेलेंट यही है ना, के इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस k2 प्लस 1/k3 इंटू एम। भाई कुछ अरेंज करना है, नीचे में 1/k1 प्लस k2 प्लस k3 इंटू एम, ये वाला मैच कर रहा है ना। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, है ना, 1/2 पावर में। So in this way you can calculate questions based on the springs given in series, parallel, okay, and the damping coefficients constants are being asked. You can calculate with the help of important formulas, okay. So in a rod, okay, by knowing the mass moment of inertia for the different geometry cases, you can calculate the natural frequency, okay, in terms of either linear natural frequency or in terms of omega n, okay. So share these type of videos with other friends so that their concept gets clear, okay. I'll be coming with much more uh, questions with based on the mechanical vibrations, okay. So thank you all.